meeting and greeting each other after a long spell of rejuvenation, the so-called summer break. So welcome everyone. Today, after more than a month, we all are back with new energy and zeal. After all, we all have gathered here to celebrate the 9th International Yoga Day, for which June 21st has been chosen. As you all know, 21st June is known as the summer solstice, meaning that we have the longest day and the shortest night on June 21st in the northern hemisphere, where we all are. Actually, the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer as the earth is closest to the sun on this day. It is on the 21st of June that the Arctic Circle experiences daylight for all the 24 hours, and that is why we have the land of midnight sun. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, in the year 2015, the Ministry of Ayush in India had declared 21st June to be celebrated as the International Yoga Day. So significant is this date that the world celebrates 21st June as the International Yoga Day, and otherwise also the summer solstice was so significant that since medieval times the Scandinavian countries, Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Baltic states celebrate this day as the day of Midsummer Festival, and lot of celebrations are there. The International Yoga Day is celebrated to remind us of practicing yoga and staying active. But most of us do not know that it is not easy at all to declare or to accept any day on the international level to be celebrated for any special purpose all over the globe. It was on December 11, year 2014, the United Nations General Assembly adopted a resolution proposed by our Indian Prime Minister Shri Narendra Modi during his address to the 69th session of the UN General Assembly. He was supported by all the 193 UN member states with a full majority who agreed to observe the International Day of Yoga on June 21. Today PM Modi, I think all of you know, will be leading a yoga session at the UN headquarters in New York, and he will be leading the yoga session in America. We are celebrating here and he is representing yoga in the country in New York for the first time. The primary objective of this day is to raise awareness about yoga as a holistic practice for mental and physical well-being. This day also promotes meditation as a regular practice for mental clarity and self-awareness, essential for a stress-free environment. Yoga has been a part of our ancient culture since 5,000 years. It is the practice of the body postures, meditation and breathing control, basically. The word yoga means union, and as regards the students, it helps them to improve their memory function and hence helps them to perform better in their academics. Even the education system has adopted yoga as a subject, and the process of including yoga in various games and sports events is under progress. Before taking today's program further, it is the time to celebrate the occasion by once again, teachers kindly applaud when I announce, again applauding for the achievements of our students during the past academic year in the field of yoga. Till the date, our students have bagged 10 gold medals and 5 silver medals and 2 bronze medals at the district level under various categories based on performances like single, pair, traditional and rhythmic yoga, etc. At state level, in the under 17 girls category, our girl students, all of us know, our dear Jasmina Sanal and Drishtika were in the Udaipur district team, and Udaipur district team got the 3rd position at the state level. At the state level yoga competition, our male students Arnav Sharma and Shivam Sahu bagged the 4th position, which is very praiseworthy. Dear teachers and
The yoga is, the national event in yoga has not been organized so far in India. So our students have gone up to the state level and won laurels for the school. Dear teachers, the theme of the International Yoga Day 2023 is Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam. To throw more light about the theme of the day and the importance of yoga in our life, I call upon our yoga teacher, Madam Dimple Solanki, to the microphone and deliver her speech. Welcome, ma'am. सुप्रभात। 9th योगा डे पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। 9th योगा डे का जो थीम है, मैम ने जैसे बता दिया कि इस साल का जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुधा मीन्स धरती और कुटुंब मीन्स परिवार। तो वसुदेव कुटुंबकम का जो श्लोक है वो इस टाइप से है कि अयोनिच परोवेति घना लघु चेतसाना उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये इसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। और इसके विपरीत उदार चरित मतलब जो उदारता वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए संपूर्ण वसुधा उनका परिवार है। इस सूत्र के अंदर योग का एक वर्ड आया, वो है चित्त। चित्त जो वर्ड आया है वो योग का एक सूत्र है, उसका वर्ड है वो है योगो चित्त वृत्ति निरोध। जहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है वो होता है योग। तो ये जो चित्त है और चित्त के अंदर चित्त की जो वृत्तियाँ है वो है 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और आलस्य। और इन प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा के कारण हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो मैं अभी आपको थोड़ा सा नीचे मैंने एक लगा रखा है चार्ट, उसके ऊपर बताती हूँ। ये जो सूत्र है वो महाउपनिषद से लिया गया है। तो ये वसुदेव कुटुंबकम। तो हमारी जो संसद के अंदर जब एंट्री होती है तो वहाँ पे कक्ष के अंदर यही सूत्र लिखा हुआ है, मतलब संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। और मैंने जो चित्त की वृत्तियाँ बताई है 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और आलस्य, उसके अनुसार हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो यहाँ तक होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फर्स्ट में होता है, हम अगर अपने चित्त के ऊपर, अपने मन के ऊपर योग के द्वारा अगर अच्छे से वर्क करते हैं तो हम इन सारी लो वाइब्रेशन जो एनर्जी है उनके ऊपर उठते हैं। तो योग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो होता है अपने मन के ऊपर वर्क करना। आप जब धीरे धीरे प्राणायाम और आसन करते हैं तो आप जैसे प्राणायाम करते हैं तो अपने मन को बहुत अच्छा कर लेते हैं। और जैसे आपका मन अच्छा होने लग जाता है, आपकी चित्त की जो वृत्ति है वो क्लियर होने लग जाती है। चित्त की वृत्ति कैसे शांत होती है, जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने कंकड़ डाला तो पानी के अंदर जो लहरें उठती है वो हमारी चित्त की वृत्तियाँ हैं। तो जैसे जैसे हम चित्त के ऊपर वर्क करते हैं हमारा मन एकदम से शांत होने लग जाता है। और जब तक चित्त शांत नहीं होता हम इन्हीं चीज़ों में होते हैं। तो जो फर्स्ट वृत्ति है हमारी चित्त की, उसके अंदर अगर हम अच्छे से वर्क करते, देखो सबसे ये वाइब्रेशन चार्ट है हमारे, हम इसी चार्ट के अंदर रहते हैं पूरी लाइफ में। और जैसे हम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करते हैं तो फर्स्ट जो है वो होता है शेम, फिर गिल्ट, एपेथी, ग्रीफ, फेयर, ये सारी हमारे अंदर होती है। हम जैसे जैसे ये यहाँ तक लो वाइब्रेशनल एनर्जी, एंगर तक, ठीक है, एंगर तक आप इसको अच्छे से वर्क करते हैं योग के थ्रू तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं धीरे धीरे। और इस ईयर का जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम। आप जैसे जैसे ये शर्म, गिल्ट, एपेथी और इनसे जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं, कि जैसे ही आप यहाँ तक, ये भी आप मतलब यहाँ से तो आप ऊपर उठ रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी और इससे ज़्यादा भी होती है। इससे नीचे ये 20 है स्कोर इसका, और 20 से नीचे की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल होती है। उसमें व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है, क्योंकि या वो किसी और को भी हानि पहुँचा देता है। इसलिए ये 20 मैंने 20 लिया है, इसके नीचे की एनर्जी को मैंने नहीं लिया। तो 20 शेम होती, शर्म होती हमारे अंदर, वो है ना सोसाइटी से भी दी हुई होती है कि भी है ना जिसका कलर फेयर है वो अच्छा है, इस टाइप की बहुत सारी, ये बहुत डिटेल में है पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जैसे शेम है,
एपैथी है, ये सारा फेयर है, डर भी हमें होता है बहुत सारी चीज़ों से। तो ये एक तो सोसाइटी से दिया हुआ होता है, एक हमारे खुद अंदर होता है, एक हम जब बचपन में हमारे साथ में कुछ चीज़ें हो जाती है उनका भी होता है, और कुछ जो चीज़ें होती है वो हमारे पास्ट लाइफ की होती है, वो हमारे कारण शरीर के अंदर मौजूद होती है। जैसे हमको कभी कभी लगता है ना ऊंचाई से डर लगता है, किसी चीज़ से डर लगता है, ये हमारे पास्ट लाइफ कारण शरीर के अंदर जो मौजूद है बहुत सारे डर। अब जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं, ये यहाँ तक 400 तक आप क्रॉस कर लेते हो, इन सब के ऊपर योग के थ्रू वर्क करके आप प्राणायाम करेंगे रेगुलर, आपके अंदर ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। योग करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, तो जैसे ये चीजें खत्म होगी, आप 500 की जो फ्रिक्वेंसी है वो है लव, अनकंडीशनल लव, जिसमें आप पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे प्रेम करेंगे अनकंडीशनल, हमें उनसे कुछ भी बस एक कोई कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल लव। वो जो यहाँ से आप उठते हैं और यहाँ पे आ जाती है आपकी वसुदेव कुटुंबकम की भावना। तो ये फिर बात है, ये बहुत सारा डिटेल में है। फिर जॉय और पीस, जॉय के बाद में आप पीसफुली हो जाते हैं, फिर आपको किसी से कुछ भी नहीं लेना है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप अपने बाहर जो चीजें होती है वो सब मिरर होता है। आप जब इंटरनल अगर पीसफुली हो जाते हैं अंदर से, तो बाहर कितनी भी चीजें हो रही वो आपको कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, आप अंदर से पीसफुली हो जाते हैं। ये जो है इसकी फ्रिक्वेंसी है 600 और 700। पीस वाले की फ्रिक्वेंसी होती है ना, जैसे आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और बहुत सारे जो अपने स्पिरिचुअल गुरु है, उनके ऊपर उनको किसी से कुछ नहीं लेना, तो दुख सुख और सब में वो संभाव रहते हैं, तो उनका मन शांत रहता है, वो चेहरे पे झलकता है। उनकी आंखें, योग के अंदर एक चीज बताएगी कि योगी अगर पीसफुल स्टेट में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी आईज निर्मल हो जाती है, मतलब शांत हो जाती है, और मन उनका शांत हो जाता है, चेहरे पे एक आभा आ जाती है, और उनकी जो एनर्जी है उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग आते हैं वो भी पीसफुल हो जाते हैं। और फिर लास्ट में तो ये है और इसके बाद में समाधि। ये योग का पूरा है, पर मैंने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि इस साल का जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव, वसुधा हमारी धरती, और यहाँ पे जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी जीव जंतु वनस्पति, ये सारा एक कुटुंब है। तो इस साल का ये थीम है वसुदेव कुटुंबकम। अब मैं सुनंदा मैम को प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग योग सेशन स्टार्ट करने। थैंक यू। Dear teachers, it is yoga time now, so get ready, relax and feel light, and perform yoga along with our yoga instructors, and kindly give an ear to what Madam Sunanda Vats explains and instructs in her soft, sweet and gentle voice. आज का योगा सत्र आरंभ करने से पहले हम सभी प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर सुखासन में बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करते हुए मेरे साथ में ये प्रार्थना बोलेंगे। संगच्छत्वं संपदत्वं सावो मनासि जानताम् देवा भाग्या यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। May you move in harmony, may you speak in unison. Let our mind be equanimous, like in the beginning. Let the divinity manifest in your sacred endeavors. हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में हम ग्रीवा चालन करेंगे। अपने हाथों को अपने कमर पे कुछ इस प्रकार रखें। धीरे धीरे अपने फेस को ऊपर आकाश की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे
यह मूवमेंट तेज नहीं होना चाहिए। ऊपर आकाश की ओर, जितना पीछे हो सके उतना पीछे। धीरे धीरे वापस से सामने की ओर आते हुए अपनी नेक को आगे की ओर बेंड करेंगे। अपनी चिन को नीचे टच कराने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलर बोन से टच कराने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर अपने फेस को एक बार फिर से पीछे की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे फिर वापस से सामने की ओर आते हुए अपनी चिन को अपनी कॉलर बोन से टच कराने का कोशिश करेंगे। वापस से सामने की ओर। अब आप अपने फेस को धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर घुमाएंगे। जितना पीछे हो सके उतना पीछे। लेफ्ट साइड की ओर आप अपने फेस को मूवमेंट देंगे। अपने फेस को अपने शोल्डर के पैरेलल करने की कोशिश करेंगे। वापस से सामने की ओर आते हुए राइट साइड की ओर अपने फेस को लेके जाएंगे। अपने मस्तिष्क में हल्कापन महसूस करिए। अगर यह मूवमेंट स्लो है तो आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा। धीरे धीरे वापस से लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएंगे अपने फेस को। बिल्कुल तनाव रहित महसूस करें। मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत। धीरे धीरे वापस से सामने की ओर ले जाते हुए राइट साइड। धीरे धीरे वापस सामने की ओर देखेंगे। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए राइट साइड की ओर आप अपने नेक को लेकर आएंगे। नेक रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। एक बार फिर से दोहराएंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। दूसरी तरफ धीरे करेंगे इसको। धीरे धीरे वापस सामने की ओर। अब अपने दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए अपने थाइस के पास। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊपर आकाश की ओर। वापस से अपने दोनों हाथ सामने नीचे। श्वासें बिल्कुल सामान्य। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ सामने की ओर लाएंगे। धीरे धीरे ऊपर। आराम से वापस अपने हाथों को अपनी समस्थिति में लाते हुए नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन। अपने दोनों हाथ अपने साइड से उठाएंगे। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर और अपने कंधे पर रखेंगे। अपने हाथों को आगे से कोहनी मिलाइए। क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। 1 2 3 anti-clockwise 1 2 and 3. Release and relax. Now trunk movement। दोनों हाथ सामने की ओर उठाएंगे। पैरों के बीच में एक सामान्य गैप होगा। अपने दोनों हाथों को और अपने अपर बॉडी पोर्शन को लेफ्ट साइड पीछे की ओर लेके जाएंगे। जितना पीछे हो सके उतना पीछे। वापस से सामने की ओर आएंगे। राइट साइड की ओर। जितना पीछे हो सके उतना पीछे। धीरे धीरे
से सामने, एक बार फिर से लेफ्ट साइड, सामने की ओर, राइट साइड की ओर लेके जाएंगे। आपके पैर मूव नहीं करेंगे, केवल अपर बॉडी पोर्शन ही ट्विस्ट होगा। धीरे धीरे वापस से सामने, रिलीज एंड रिलैक्स। आपके दोनों पैरों में अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा गैप होगा। चेयर सिटिंग पोज करेंगे, उत्कटासन, दोनों हाथ सामने की ओर। श्वास भरते हुए थोड़ा सा अपनी बॉडी को हील्स पर उचकाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, वापस आते हुए ऐसे बैठेंगे जैसे कि आप किसी चेयर पे बैठे हो। अपनी नीज को बेंड करेंगे, एक हल्का सा स्ट्रेच महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस आइए, एक बार फिर से दोहराएंगे। उत्कटासन helps to strengthen your knee and hip joint. वापस आएंगे, एक बार फिर से वापस आइए, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा कम गैप। अब हम करेंगे ताड़ासन, एक सामान्य बैलेंस की मुद्रा में। दोनों हाथों को आगे लाते हुए फिंगर लॉक बनाइए। श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की ओर अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हील्स उठाएंगे, टोज पे बैलेंस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से फिंगर लॉक बनाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर आकाश की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस समय आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। दिस आसन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन योर बॉडी एंड करेक्ट्स योर पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से यही आसन ताड़ासन दोहराइए। फिंगर लॉक बनाइए। श्वास भरते हुए ऊपर आकाश की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। अपना बैलेंस महसूस करिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन वृक्षासन। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इनर थाई पर अपने लेफ्ट लेग को रखेंगे, बैलेंस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर ऊपर नमस्कार मुद्रा में और किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अपने बैलेंस को, अपनी एकाग्रता को महसूस करें। दिस आसन हेल्प्स to improve neuromuscular coordination and balance. It also improves your alertness and concentration. धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग पे बैलेंस करेंगे। नमस्कार मुद्रा में अपने बैलेंस को महसूस कीजिए और अपनी मन खुश भी होगी कि हम कितना अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं खुद को। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से लेफ्ट लेग से ये आसन दोहराइए, वृक्षासन। वापस आएंगे। राइट लेग से यह आसन दोबारा दोहराइए। राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट लेग पे रखेंगे। रिलीज
अपने दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे पादहस्तासन। श्वास भरते हुए आप अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और अपर बॉडी पोर्शन को नीचे की ओर झुकाइए। अपने हाथों से अपने टोज को टच करने का प्रयास करेंगे। पैर का जो भी हिस्सा आपके से टच हो रहा हो उसी को टच भी करेंगे। धीरे धीरे प्रयास करेंगे और आराम से आप पादहस्तासन कर पाएंगे। वापस ऊपर आइए। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लेते हुए वापस से अपर बॉडी पोर्शन को आगे की ओर बेंड करेंगे। This asana helps to make your spine flexible. धीरे धीरे वापस आएंगे। Release and relax. Next asana, अर्ध चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन। दोनों हाथ अपने बैक पर रखिए। अपने अपर बॉडी पोर्शन को जितना आपकी क्षमता हो उतना पीछे की ओर बेंड कर सकते हैं। वापस से सामने की ओर। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। जब आप बेंड कर लेंगे तो श्वास से सामान्य लेंगे। जब आप वापस सामने रिलीज करेंगे पोजीशन को तो श्वास छोड़ेंगे। वापस रिलीज। एक बार फिर से अपर बॉडी पोर्शन को बेंड करेंगे। आपके पैर नहीं बेंड होने चाहिए, केवल अपर बॉडी पोर्शन ही बेंड होगा। धीरे धीरे वापस से सामने। Release and relax. अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक गैप, शोल्डर से ज्यादा। दोनों हाथ उठाएंगे, हथेलियां आकाश की ओर। थोड़ा सा लेफ्ट फुट बाहर की ओर निकालते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट टच करेंगे और राइट पाम को देखेंगे ऊपर। वापस आएंगे। अब लेफ्ट फुट को सीधा कर लीजिए। अब राइट फुट थोड़ा सा बाहर की ओर निकालेंगे। राइट हैंड से राइट फुट को टच करेंगे और लेफ्ट पाम को ऊपर की ओर देखेंगे। वापस से सीधे सेम पोजीशन। लेफ्ट साइड से दोबारा रिपीट करेंगे। जो हाथ ऊपर है उसे देखने की कोशिश। वापस रिलीज करेंगे लेफ्ट साइड वाली पोजीशन को। राइट साइड से सेम क्रिया दोहराएंगे। थोड़ा सा राइट फुट बाहर की ओर, राइट हैंड से उसको टच करने का प्रयास। लेफ्ट हैंड को आप देखेंगे ऊपर की ओर। This asana strengthens your calf muscles, thigh muscles, waist muscles and increase lung capacity. धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ नीचे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, पैर आगे करके दंडासन में। अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे कुछ मूवमेंट से। पंजे अंदर बाहर, मसल्स को थोड़ा सा फील करिए, रिलैक्स करिए। टोज को रोटेट करिए, फीट को रोटेट करिए।
नेक्स्ट आसन वज्रासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिलाएंगे, बटरफ्लाई पॉस्चर। अब आप अपने पैरों को मूवमेंट देखेंगे ऊपर नीचे की ओर। आंखें बंद करके महसूस करिए अपने कि आप अपनी बॉडी को पूरा पोषण दे रहे हैं, आज उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। जब आप मूवमेंट देते देते थक जाए, थोड़ा सा रुक सकते हैं और फिर से इसको दोहराइए। This helps to keep the body firm and stabilize the mind. अब दोनों पैर सामने की ओर वापस से दंडासन में अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। अब आप सभी वज्रासन में बैठेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाइस के नीचे, राइट लेग को फोल्ड करके राइट थाइस के नीचे। आराम से वज्रासन में बैठेंगे। ये एक लौटा ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी बैठ सकते हैं और इसी पोस्चर में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। बिकॉज दिस हेल्प्स इन वेरी गुड डाइजेशन, strengthens your thigh muscles and calf muscles. Breathe in, breathe out, relax your body. अब हम करेंगे उष्ट्रासन। आप अपने नीज पे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों घुटनों के बीच में एक सामान्य गैप, अर्ध उष्ट्रासन। इसके अंदर आप अपने बैक पर अपना हाथ रखेंगे, श्वास भरते हुए अपने आप को बॉडी पोस्चर को पीछे की ओर बेंड करेंगे, अपने हेड को भी पीछे की ओर बेंड करेंगे। वापस आएंगे, सामने की ओर देखेंगे, वापस से डीप ब्रीथ करते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। जब आपने बेंड कर रखा है तो श्वास बिल्कुल सामान्य है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर सीधा। एक बार फिर से। वापस आएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। आप वापस से वज्रासन में ही बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। नेक्स्ट आसन शशांक आसन। दोनों घुटनों के बीच में सामने से थोड़ा गैप। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे अपर बॉडी पोर्शन को नीचे की ओर बेंड करेंगे। दोनों हाथों को नीचे की ओर बेंड करेंगे। शशांक आसन। This आसन helps in reducing stress and anxiety. श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे। एक बार फिर से तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड करेंगे। रिलैक्सेशन को महसूस कर लेंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से गहरा श्वास लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड करेंगे। पूरी बॉडी को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, ये स्ट्रेच फील करेंगे।
वापस अपनी पूर्व पोजीशन में आते हुए रिलीज एंड रिलैक्स। आप दंडासन को रिलीज करेंगे, वज्रासन को, दोनों पैर सामने की ओर। एक बार फिर से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। हल्का सा मूवमेंट देंगे, अपने मसल्स को वापस से एनर्जाइज करेंगे। नेक्स्ट वक्रासन, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड करके उसको लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का जो भी हिस्सा आपसे टच हो सके वो टच करिए। पीछे की ओर देखेंगे। वापस रिलीज करेंगे यहाँ लेफ्ट लेग की पोजीशन। राइट लेग से रिपीट करेंगे। राइट लेग फोल्ड करिए, राइट हैंड पीछे की ओर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को होल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ने का प्रयास करेंगे। वापस पोजीशन रिलीज करते हुए अब राइट लेग वापस से फोल्ड करेंगे। राइट हैंड पीछे की ओर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग को होल्ड करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आप सभी अपने स्थान पर उल्टे होकर प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे। दोनों हाथ क्रॉस करके लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, दोनों हाथ अच्छे से क्रॉस करके लेट जाएंगे। रिलैक्स करेंगे आपका सर नीचे की ओर मकरासन में। Relax your body. अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर में रखेंगे, पैरेलल बिल्कुल थोड़ा सा पास में, अपने शरीर के थोड़ा पास में, दोनों हाथ अपने शरीर के पास में। पीछे से एड़ियाँ मिली हुई प्रयास करेंगे मिला सके। श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी पोर्शन को ऊपर की ओर उठाएंगे। This asana helps in recovery of back problems. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी पोर्शन को उठाएंगे। केवल अपर बॉडी पोर्शन उठाएंगे, लेग नहीं उठाएंगे, पैर नहीं उठाएंगे। ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपने अपर बॉडी पोर्शन को मूव करेंगे। ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। Now release and relax in वक्रासन again. एक बार फिर से वक्रासन में
रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन शल्वासन। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के लेफ्ट थाई के नीचे, राइट हैंड की मुट्ठी बना के अपनी राइट थाई के नीचे रखेंगे। चिन ग्राउंड पे, आपकी चिन ग्राउंड से टच करेगी। अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे, जितना हो सके सीधा रखने का कोशिश करेंगे। लेफ्ट लेग को वापस धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब आप अपने राइट लेग को उठाएंगे, धीरे धीरे वापस लाएंगे। एक बार फिर से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, धीरे धीरे वापस। अब राइट लेग को उठाएंगे, चिन ग्राउंड पे, राइट लेग नीचे। अब दोनों पैर एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे, चिन ग्राउंड पे टच करते हुए बस पैर उठाने हैं। धीरे धीरे वापस नीचे रखेंगे। एक बार फिर से दोनों पैर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस रखेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स इन मकरासन। अब आप सभी लेफ्ट साइड से टर्न होके सीधे होकर लेट जाएंगे अपने स्थान पर। लेफ्ट साइड से टर्न होके अपने स्थान पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी एनर्जी को रिस्टोर करेंगे। अपनी एनर्जी को अपने पास रखें, बातें करके वेस्ट हो जाएगी। अपने दोनों पैर फोल्ड करेंगे सेतु बंद आसन के लिए। अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से पकड़ेंगे लेटे लेटे। ये दोनों एड़ियों को एंकल जॉइंट को अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे। सर नीचे ही रहेगा। श्वास छोड़ते हुए वापस पोजीशन में, इसी पोजीशन में रहेंगे। धीरे धीरे वापस से श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों पैर सीधे, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेली आसमान की ओर, रिलैक्स करेंगे। लंबा मेरा श्वास लीजिए और छोड़िए। अब हम करेंगे उत्थान पादासन। दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैर भी आपके पास में। अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लेफ्ट लेग लेके आएंगे। फिर आप अपना राइट लेग उठाएंगे, राइट लेग धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे, धीरे धीरे वापस नीचे की ओर अपना लेफ्ट लेग लेके आएंगे। अपना राइट लेग उठाएंगे, धीरे धीरे वापस नीचे।
राइट लेग नीचे की ओर। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से। धीरे धीरे वापस रिलीज एंड रिलैक्स। आसमान की ओर, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, स्वयं को रिलैक्स करेंगे नेक्स्ट आसन के लिए। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, हाथों से डबल लॉक बनाएंगे अपने पैर को और अपने अपर बॉडी पोर्शन को उठाते हुए अपनी चिन को अपने नी से टच कराने की कोशिश करेंगे। रिलीज। यह आसन राइट लेग से दोहराएंगे। लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे आप। लेफ्ट लेग को फिंगर लॉक बना के अपने शरीर के पास लाने का कोशिश करेंगे। रिलीज। और राइट लेग का फोल्ड करके फेस से टच कराने के प्रयास करेंगे। रिलीज। अब दोनों पैर एक साथ फोल्ड करेंगे। Release and relax. दोनों पैरों में एक सामान्य गैप, दोनों हथेलियां आसमान की ओर शवासन मुद्रा में लेट जाएंगे। अब हम करेंगे शवासन। अपना पूरा ध्यान अपने लेफ्ट लेग की ओर लाएंगे। रिलैक्स करेंगे अपने लेफ्ट लेग को, पूरी तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हल्का सा हिला के अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान राइट लेग की ओर लाएंगे। लेफ्ट लेग और राइट लेग की टोज, सोल, काफ मसल्स, थाई मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब आपका ध्यान आपके दोनों हाथों की तरफ, आपके फिंगर्स, पाम, रिस्ट जॉइंट, लोअर हैंड मसल्स, एल्बो, अपर हैंड मसल्स, शोल्डर जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपका ध्यान आपकी बैक की ओर, आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। आपका एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर दोनों शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में। अब आपका ध्यान आपके फेस की ओर। रिलैक्स योर चिन, लिप्स, cheek, ears, eyes, forehead, head. Relax your brain.
विचार आ रहे हो या जा रहे हो, जो भी मन में विचार है उन्हें धीरे धीरे बिल्कुल शून्य करने का प्रयास करें। आप अपने शरीर को बिल्कुल शून्य करने का प्रयास करेंगे। महसूस करेंगे कि जैसे एक सूखे पत्ते के समान आपका शरीर इस धरती पर है। आंसुओं द्वारा आया हुआ सारा स्ट्रेस धीरे धीरे बिल्कुल रिलीज हो गया है। वापस से अपनी चेतना को महसूस करेंगे, अपने शरीर को हल्का सा मूवमेंट देते हुए लेफ्ट साइड से टर्न होके अपने स्थान पर सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने शरीर को नेक्स्ट स्टेज प्राणायाम की ओर ले जाते हुए सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। एक कंफर्टेबल पोस्चर में सुखासन में बैठेंगे। कपालभाति के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, अपनी श्वासों को बिल्कुल सामान्य करेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए। कपालभाति करने के लिए आप सभी को श्वास झटके से छोड़नी है। आपको अपने एब्डोमेन में मूवमेंट महसूस होगा। कपालभाति शुरू कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार जितने स्ट्रोक्स आप आराम से श्वास छोड़ सकें छोड़ेंगे। जब आपको एक स्ट्रेस महसूस होगा तो लंबा गहरा श्वास लेकर और छोड़कर दोबारा शुरू कर सकते हैं। कपाल मीन्स फॉरहेड, भाति मीन्स रेडियंस। आराम से केवल श्वास छोड़नी है, लेनी नहीं। वह स्वतः ही आपके अंदर जा रही है। अंदर जाती हुई श्वास आपको महसूस नहीं दे रही है, परंतु वह आपके अंदर लगातार जा रही है। Kapalbhati is very useful in treating cold, asthma, bronchial infections. It rejuvenates the body and keeps the face glowing and vibrant. Kapalbhati strengthens your nervous system, tones up the digestive organs. आप अपने स्ट्रोक्स काउंट भी कर सकते हैं। डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। एक बार फिर से कपालभाति को शुरू करेंगे। अपने स्ट्रोक्स काउंट करने का प्रयास करिए कि आपने 1 मिनट में कितने स्ट्रोक्स ब्रीथ आउट करे हैं।
and relax. Deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथों से शब्द मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से वो श्वास धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे अपने थंब से और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। यह है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। Release and relax. Next pranayam, शीतली प्राणायाम। अपनी टंग को दोनों ओर से फोल्ड करते हुए मुंह से श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास लेने के बाद में अपने माउथ को क्लोज करके नाक से श्वास छोड़ेंगे। Shikti pranayam has cooling effect on body and mind. This is very beneficial for the person suffering from high blood pressure. This asana is also very beneficial for skin and eyes. This pranayam also satisfies your thirst. Release and relax. Next pranayam, Bhramari pranayam. अपने अंगूठे से अपने कान को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, अपने फिंगर्स को आइस पे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। हमिंग भी एक भौरे के समान श्वास छोड़ेंगे, जैसे उसकी आवाज़ होते हुए श्वास छोड़ेंगे और इस आवाज़ को अपने मस्तिष्क में सुनेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करेंगे धीरे धीरे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। से लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते वक्त अपनी यह ध्वनि अपने मस्तिष्क में महसूस करिए।
श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते वक्त इस आवाज को अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे। Complete your round. Release and relax. अब ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। जैसे कि आप कंफर्टेबल हो उस पोस्चर में बैठेंगे, आंखें बंद करके। अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, धीरे धीरे उनको शून्य करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आपका ध्यान किसी और वस्तु पर, किसी और व्यक्ति पर नहीं, स्वयं पर हो। पूरा मन, पूरा मस्तिष्क, सारे विचार धीरे धीरे शून्यता की ओर। महसूस कीजिए जैसे कि आपकी नोस्ट्रल से लेकर नेवल तक एक पाइप है जो श्वास भीतर की ओर लेके जा रहा है। जो प्राण वायु आपके भीतर की ओर जा रही है वह आपके पूरे शरीर में फैलती हुई आपको ऊर्जा दे रही है। अपनी बंद आंखों से स्वयं को देखिए। स्वयं का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में पड़ रहा है, और आपके शरीर में समा रहा है। यह आपको ऊर्जा दे रहा है। स्वयं को अनुभव करिए। आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका को ऊर्जा मिल रही है। आप सभी मन ही मन यह संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपने मन को हमेशा संतुलित रखेंगे। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य को स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ।
अपनी स्वयं की चेतना को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाते हुए प्रार्थना करेंगे, ओम सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामयः, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। रिलीज एंड रिलैक्स। आज का योगाभ्यास यहीं तक है। रिलीज एंड रिलैक्स। Thank you, dear teachers, for your active participation in this yoga session. We hope that you must be feeling light, refreshed and very calm mentally also. As our yoga celebration is coming to an end, I take the opportunity to thank Father Principal, Reverend Father George KK and our school authorities for granting us with the permission and infrastructure to carry out the celebration of the Yoga Day. I thank our Yoga Guru. I thank our Yoga Guru, Yogini Madam Dimple Solanki and Yog Mudra Guide Madam Sunanda Vats for enlightening us with her soothing words and proper timing. Really, both of them, along with the soothing music put up by Pascal sir and Rajesh Ishore sir, had taken us on a divine and a cosmic travel into the universe and set us into the mode of meditation and self-upliftment. I also extend gratitude to our PTI's team, Sir Mukesh Chauhan, Sir Bhavar Singh Chauhan, Sir Govardhan Singh Chauhan and Madam Poonam Devda for their contribution at every step of planning and execution of this International Yoga Day celebration. I wholeheartedly thank the multimedia element supporters, a very silent team, Alankar sir for the photos and the camera, Matthew sir for the videography, Pascal and Rajesh Ishore sir for audio elements, and not to forget Prahlad sir for the backdrop and the graphics. And last but not the least, again thank you dear teachers. The story is not over yet. For more yoga, now this is a special special tip for all of you. For more yoga dear teachers, set your reminder and join the live session at 3:30 p.m. Indian Standard Time and watch the special yoga session live from the European Parliament where Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, the Art of Living Guru as you all know, will take a yoga session which will have a blend of yoga, breathing techniques and meditation. This program is being organized by the Embassy of India in Belgium. The link is on Facebook, fb.com/Sri Sri Ravi Shankar, or on the YouTube you can search the live streaming program or youtube.com/Sri Sri.#JGD. Thank you one, thank you all.